नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वर्तमाने जिनेश्वर सिमंदर स्वामी स्वनो अमी झरे तेनु नाम स्वामी वर्तमाने जिनेश्वर सिमंदर स्वामी नमो अरिहंताणं आँख सामे सिमंदर पूर्ण चैत्य वंदनाथी आत्मरमण सद्धर निश्चयथी नमस्कारु प्रत्यक्ष देरासर श्रद्धानी मूर्ति छो हरिहरा परमेश्वर आणी पेरे भारत पेली पेर विदेह सजीवन तीर्थ मूर्त देह साथे विचरे वर्तमाने जिनेश्वर सिमंदर स्वामी देह साथे आपणाथी ना जवाय कई नहीं भावज पहुँची जाय दर्शन थाय अहीं चरम देही परमाणु घूमे छे ब्रह्मांड मां तेथी लाभ लब्धि थाय सूक्ष्म संधाનમાં भगवान जागता हालता ने चालता આપણું કલ્યાણ કરે વાતમાં ને વાતમાં વર્તમાને જીનેશ્વર સિમંદર સ્વામી सतदेव सदगुरु बोले सतवाणी
દેવ સદગુરુ બોલે સતવાણી સતદેવ સતગુરુ બોલે સતવાણી સતધર્મી દર્શને રત્નત્રય લહાણી સતધર્મી દર્શને રત્નકરાણી સિદ્ધાણમ મૂર્તિના દર્શનથી પુણ્યફળ સિદ્ધાણમ મૂર્તિના દર્શનથી પુણ્યફળ અરિહંતના દર્શને પ્રાપ્ત થાય મોક્ષફળ હરિહંતના દર્શને પ્રાપ્ત થાય મોક્ષફળ મૂર્તિ પૂજા તપો જપે ઉપયોગે આરાધન મૂર્તિ પૂજા તપો જપે પૂજ્યતે આરાધન જીવતા તીર્થની કીર્તનાએ મોક્ષધન જીવતા તીર્થની કીર્તનાય મોક્ષદમ વર્તમાને જિનેશ્વર સિમંદર સ્વામી વર્તમાને જીવેશ્વર સિમંદર સ્વામી ધર્મ મર્મે શ્રદ્ધાથી વિશ્વ માર્ગ ભૂલાય ધર્મમન સત્તાથી વિશ્વમાર્ગ ભૂલાય આંતરિક શાંતિ મિલે ત્યારે મીટે જગત લાય આંતરિક શાંતિ મિલે તારે જડે જગત લાય દેવલોકી રક્ષણ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિને દેવલોકી રક્ષણ પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિને દેરાસર ને મંદિર પમાડે જો વીરતીને દેવાસરને મંદિર પ્રમાણે જો કીર્તિને સિમંદરી લક્ષ સાથે નમસ્કારો ત્રિમંત્રો સિમંદરી લક્ષ સાથે નમસ્કારો ત્રિમંત્રો પંચ પરમેષ્ટિ પદ જાતમાં જ નિમંત્રો પંચ પરમેષ્ટિ પદ જાતમાં જ નિમંત્રો વર્તમાને જિનેશ્વર સિમંદર સ્વામી વર્તમાને જીવેશ્વર સિમંદર સ્વામી હાજરા હજૂરના દર્શનથી કલ્યાણ દર્શનથી કલ્યાણ હાજરા હજૂરના દર્શનથી કલ્યાણ દર્શનથી કલ્યાણ એમ નિજ પરશદામાં મરી જીવું કલ્યાણ મતાંધોનું મારણ આત્માર્થ પામવા કામરેજ સંકુલે મુક્તિ સુખ ચાખવા હેલ્પફુલ થાય એ જ ભગવાન હાજર પ્રકૃષ્ટ પ્રાર્થનાથી મોક્ષ વર્તે અંદર વર્તમાને જિનેશ્વર સિમંદર સ્વામી ઊંચ નીચ પક્ષ ભેદ દેખી થાચે સંસારી ભગવાન અપક્ષ ચોખ્ખા અસંસારી એમ નિજ નિશ્રામાં એક સરખા આત્મા
સમજીને સમાનારા થાય પરમાત્મા. સમજીને સમાનારા થાય પરમાત્મા. મતભેદ મતાર્થોને મિટાવે તે મહાસત્ય. મતભેદ મતાંતોને મિટાવે તે મહાસત્ય. મતભેદ મતાર્થોને મિટાવે તે મહાસત્ય. મતભેદ મતાંતોને મિટાવે તે મહાસત્ય. ઝઘડા જે નિવારે તે જવાણી પરમ સત. ઝઘડાને નિવારે તે જવાણી પરમ સત. ઝઘડા જે નિવારે તે જવાણી પરમ સત. ઝઘડાને નિવારે તે જવાણી પરમ સત. વર્તમાને જિનેશ્વર સિમંદર સ્વામી. વર્તમાને જિનેશ્વર સિમંદર સ્વામી. સ્વનું અમી ઝરે તેનું નામ સ્વામી. સ્વામી જરે તેનું નામ સ્વામી. સ્વનું અમી ઝરે તેનું નામ સ્વામી. સ્વામી જરે તેનું નામ સ્વામી. જય સચ્ચિદાનંદ. बोलिए. कुछ बोलेंगे तो हम गाड़ी आगे लेंगे. सुनीता जी बोलिए कुछ. और निर्मला बेन तो बोलते नहीं है. हाँ, प्रश्न तो बहुत होते हैं. हेल्पलाइन क्या बोलते हैं? જય સચિદાનંદ સાહેબ ત્યારે કોઈ જાય. જય સચિદાનંદ સાહેબ ત્યારે કોઈ જાય. સરસ સરસ. जय सच्चिदानंद. જય સચિદાનંદ. खूब सरस सरस सरस. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. હવે સોરી શું સરસ તમે આવ્યા જે સરસ છે તો પછી જયશ્રીબેન આવે છે ઓનલાઈન. હા આવે છે ને આ ચાલુ છે જુઓ. ચાલુ હોય ત્યારે આવે ના હોય ત્યારે ના આવે. હોય ત્યારે તો આવે જ છે. હા ના નથી અનલેસ હા છે અનલેસ કનેક્શન ના હોય તો પણ નોર્મલી તો અહીંયા સિટીમાં તો મળી જાય કનેક્શન. हाँ सुनीता जी बोलिए कुछ. ऐसा है તમારા પુત્ર વધુનું નામ શું છે? બિંદી. બિંદીબેન કંઈ વાત કરો કારણ કે અહીંયા વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિ નથી.
તમે કંઈ વાત કરો એટલે પછી એના પરથી વાત નીકળે. કારણ કે जैन हिंदी चलेगी, गुजराती नहीं, हिंदी, हाँ हिंदी हिंदी. वो क्या बताया कि जैन होने के नाते आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन रसोई की जानकारी है लेकिन बना सके और बना के खिलाए तब उसका मतलब बनता है. इसीलिए ये सब बातें हमने सुनी है, जानकारी है, लेकिन वो सब सिद्धांत जब तक हम जीते नहीं हैं और जिएंगे तो उसका स्वाद हमें आता है. तो वो कैसे जिया जाए वो रास्ता दादा भगवान ने बताया. तीर्थंकर परमात्मा उन्होंने भी यही रास्ता दिखाया कि शास्त्र से जानकारी मिलेगी, व्याख्यान से सुनने मिलेगा, लेकिन आप उसको जिएंगे कैसे. वो पृथ्वीराज जी कब आने वाले हैं? बात बताया, उन्होंने बताया था बाद में. बिंदी जी बोलिए. मुझे तो बहुत सारे प्रश्न थे, मैं तो पूछ के आधा हो गया था बोलेंगे. पूछने की वो नहीं रखना चाहिए, पूछ लेना चाहिए. अच्छा, तो हमारे MBA तो 6 बजे आ जाते हैं ना घर पर. MBA सब दोनों तो 6 बजे आ जाते हैं ना. हाँ, आज आए नहीं. आज उनको करना क्या है? ऑफिस का काम घर पर करते हैं. बुखार है? बुखार की तो ऑफिस तो जल गए. नहीं ठीक है, ये तो एक बात है. बुखार होने पर भी ऑफिस जाते क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है. यहाँ मिलता है लेकिन वो पता नहीं चलता है. नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमें कभी नहीं बराबर है. आपकी छोटी कहाँ गई? बच्चों को खिला दी. अच्छा, जय सच्चिदान. कुछ बोलेंगे तो मेरे से बात होगी, वरना फिर ये भजन है. कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे. कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे नमस्कार हमारे. अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, सुनीता के भीतर आत्मस्वरूप महावीर भगवान विराजते हैं. आत्मस्वरूप
दादाजी बिराजते हैं। उन्हें जो पहचाने जो चाहे वो पाले, दिनेश भाई, बिंदी जी ने अपनी खुद की पहचान की है? बिंदी जी ने, आपकी बहू ने उनकी खुद की पहचान की है? पता नहीं है। आप जानते हो ना आप कौन हो? हाँ, तो आप कौन हो? बहुत अच्छे। देखो, आप बिंदी जी है ना, तो बिंदी जी होने के नाते आप किसी की बेटी है, किसी के बहन हो, किसी के बहू हो, किसी के पत्नी हो, तो ये सब हम जीवन का जो रोल बनता है वो आप करते हो, वो करने वाले बिंदी जी है। आप शुद्धात्मा हो, अब क्या करते हो? आप शुद्धात्मा में तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। सुनीता जी, आप क्या करते हो शुद्धात्मा है तो? कैसे मैं क्या समझूं ऐसा करेंगे तो? हाँ, शुद्धात्मा का काम क्या है? बोलिए। देखो, एक बहू होने के नाते आपको पता है, मम्मी है, मम्मी हुए तो मम्मी होने के नाते आप मम्मी का धर्म बजाते हैं, पत्नी का धर्म बजाते हैं। लेकिन ये जो सांसारिक जो जिम्मेदारियां है वो सुनीता जी की है, बिंदी जी की है। लेकिन आप शुद्धात्मा हो, तो शुद्धात्मा होने के नाते आपको क्या करना होता है बस समझना है। ये सब रोल तो अच्छी तरह से कर लेते हैं आराम से, लेकिन शुद्धात्मा होने के नाते जो आप हुए हो, जैसे किसी की अगर शादी नहीं हुई है तो उनके लिए पति धर्म या पत्नी धर्म आएगा ही नहीं कभी जीवन में, सही है ना? उसी तरह से जो शुद्धात्मा नहीं हुए हैं वो कभी शुद्धात्मा का रोल अदा कर ही नहीं पाएंगे। तो आप शुद्धात्मा हुए तो शुद्धात्मा होने के नाते आपको वो शुद्धात्मा का रोल अदा करना होता है। तो शुद्धात्मा का रोल क्या होता है? बिंदी जी क्या सोचते हैं आप? आपने क्या पढ़ाई की? अच्छा, तो अकाउंटिंग आप अच्छी तरह से जानते हो। अभी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं दूंगा आपको अकाउंटिंग का, लेकिन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल आप जानते हैं कि हर धंधे का अकाउंटिंग होना है। तो ये जीवन भी कोई एक धंधा है कि नहीं है? जीवन भी धंधा है। उसमें एक जमा होता है, दूसरा उधार होता है। जमा वाला भाग है वो नया कर्म बनाता है, और उधार वाला भाग है ना, वो पुराने कर्म का भुगतान करवाता है। तो हर एक संयोग आता है ना, तो वो संयोग में या तो सुख आता है या दुख आता है, वो आके चले जाता है। तो सुख तो सबको अच्छा लगता है, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो पहले दुख का निपटारा करना चाहिए कि वो क्या उसको क्या बोलेंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन किया था कि जिसके कारण ये दुख वाली एंट्री आ गई, आपके कर्म के खाते में दुख की एंट्री आ गई। और जैसे महावीर भगवान
ध्यान में बैठे थे, वो ग्वाला आया और वो सब पूरा हुआ और उनको कान में कांटा चुभाया। तो उनको पता चल गया, उनको भी यही ज्ञान हुआ था शुद्धात्मा का, लेकिन वो शुद्धात्मा के अनुभव की श्रेणी में आ गए थे। इसीलिए उनको जैसे भुगतान हुआ ना कान में, उनको तुरंत दिखाई दिया उनके ज्ञान में, शुद्धात्मा के ज्ञान प्रकाश में, कि इतने जन्म पूर्व ये गलती हुई थी और उसका ये परिणाम आया, और वो ग्वाला तो केवल निमित्त है, लेकिन वो जो गलती हुई थी उसका परिणाम अब आया। वो कितने जन्म पूर्व वो कर्म हुआ था और आज उसका परिणाम आया। यानी आज हमारा जीवन जो है ना, वो पूर्व कर्म का सब परिणाम ही है। और जिनको ये शुद्धात्मा का ज्ञान हो गया वो नामधारी नहीं रहे। आप सुनीता जी हो, लेकिन सुनीता जी नहीं रहे, बिंदी जी हो, बिंदी जी नहीं रहे, उसका मतलब क्या है कि मैं निश्चय से, यानी सही में, हकीकत में मैं सुनीता नहीं हूँ, मैं बिंदी नहीं हूँ, हकीकत में सही में मैं शुद्धात्मा हूँ। और ये जो नाम और नाम से जुड़ा हुआ जीवन व्यवहार है वो कर्म का परिणाम है। वो वर्धमान स्वामी, वो शरीर का नाम वर्धमान स्वामी था, तो वर्धमान स्वामी को कांटा चुभाया, वर्धमान स्वामी के ऊपर तेजोलेशिया छुटी, अंगारे बरसे, और वे शुद्धात्मा में रहकर शुद्धात्मा दृष्टि से ये सारा परिणाम को, भुगतान के परिणाम को देखा और वो समझ गए इसका क्यों हुआ था। क्योंकि ज्ञान में वो दिखाई देता है कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसके कारण ये परिणाम आया। और जैसे हमें पता चल जाता है कि ये गलती हुई थी, वही वो गलती का निवारण हो जाता है। क्योंकि एक बार हमें गलती दिखाई दी, यानी समझ में आ गया कि ये गलती के कारण ये परिणाम आया, तो तुरंत ही उसका प्रतिक्रमण हो जाता है। दिखाई देना चाहिए। जैसे कुछ कचरा देखते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते चलो ठीक है फिर बाद में उठा लेते हैं, तुरंत उठा के कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। यही काम है शुद्धात्मा होने के नाते। आपका काम क्या है कि अंदर से जागृत रहो, जैसे महावीर भगवान अंदर से जागृत रहे थे कि बाहर के कर्म के परिणाम जो जो उनको, संसार का परिणाम तो खत्म हो गया, वो सब परिणाम खत्म हो गया। 30वें साल में उम्र में उन्होंने घर त्याग किया। अभी वो जो भूमिका उनकी थी 30वें साल से घर से निकलकर, बहुत अच्छी बात है। आपको ये ज्ञान मिलने के बाद, जब भी ये ज्ञान मिला ना, तब ये सुनीता जी के घर से आप बाहर निकल गए, समझ गए, बिंदी के घर से बाहर निकल गए। और ये जो सब परिणाम है, जो महावीर भगवान को, वर्धमान स्वामी को जो कर्म के परिणाम आए 12.5 साल, जो उनका तप का समय बताया गया, वो तप के समय में आ गए। आपको मानने में आए नहीं आए वो अलग बात है। जैसे कि शादी हो गई है और कोई बोलते कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ कि मेरी शादी हो गई, तो शादी हो गई है तो हो ही गई है। उसी तरह से आप शुद्धात्मा हो गए तो आप हो ही गए। और इसके कारण अभी ये आपका तप का समय शुरू हो ही गया है। तो ये तप के समय में आपको, ये जो सुनीता जी है ना, बिंदी जी है, वो तप में रहते हैं और आप शुद्धात्मा में जागृत रहकर वो कौन से कैसे तप में से गुजरते हैं उसको देखते हैं। देखने वाला परेशान नहीं होता है।
लेकिन मैं सुनीता हूँ, मैं बिंदी हूँ, तो वो झटका लगता है। लेकिन अब वो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो जो संजोग में से गुजरते हैं तो उसकी असर आती है। मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो पहले के कर्म का परिणाम है। तो आज आपको जागृत रहकर वो जब बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आपको समझ लेना है कि ये मैं कहते हैं ना, वो सुनीता ने किया, मैं कहते हैं वो बिंदी ने किया। समझ में आया? तो इतना ही समझना है। जहाँ मेरा कहते हैं तो उसको समझ लेना है कि वो ये नामधारी का है। ख्याल में आया? इतना ही करना है। आज मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपको अंदर से पूछना है तो कौन परेशान है? तो सुनीता परेशान। वो क्यों परेशान है? तो बोले ऐसा ऐसा सब हुआ। तो क्या बताया? जो संयोग की शुरुआत होती है ना, वो संयोग का एंड आता ही है। जय सच्चिदानंद। वो संयोग का एंड आता ही है, क्योंकि नियम ऐसा है, जिसकी शुरुआत होती है ना, उसका अंत आता है। तो ये समझ से क्योंकि हमें जीना है। देखो, रात जैसे कल भी बताया था, अब रात हो गई तो सुबह तक क्या करेंगे? थोड़ा इधर उधर करके सो जाएंगे, सुबह अपने आप आ जाएगी। उसी तरह से ये ज्ञान से हम भुगतान की असरों में सो जाते हैं। वो असरों को हम भुगतते नहीं हैं। भुगतने वाले तो सुनीता जी है, हम भुगतते नहीं हैं। शुद्धात्मा को कोई भुगतान स्पर्श नहीं करता। समझ में आया? वो कर्म के परिणाम से आता है, नामधारी को आता है, तो वो आके चले जाता है। जैसे महावीर भगवान को कान में चुभाया, तब से उनको वो पीड़ा थी, और फिर जो वैद्यराज ने वो निकाल दिया, तब तक वो रही। लेकिन तब तक उनके कर्म का हिसाब ऐसा था, वो इतना समय रहा कान में, और वो वाला थोड़ा समझदार था, कांटा चुगा कर बाहर से तोड़ दिया कि किसी को पता ना चले। ऐसे हमारे जीवन में भी सब होता रहे। वो कर्म का परिणाम है। वो कर्म आपने नहीं बांधा। ये समझ में आता है? ये शरीर हमारा नहीं है, लेकिन हमें मिला है, और उसमें इस शरीर को नाम दिया था सुनीता, और आपने मान लिया मैं सुनीता हूँ। समझ में आया? क्योंकि आपका अस्तित्व मैं सुनीता जी हूँ, मैं बिंदी जी हूँ, वो ये जन्म के पूर्व कभी नहीं था, और ये जन्म के बाद कभी होने वाला नहीं है। और ये जन्म में आपने आपकी पहचान कर ली कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये कर्म आपको स्पर्श नहीं करते हकीकत में, लेकिन मेरा माना जाता है, क्योंकि वो पहले का कर्म का परिणाम मैं करके जो कर्म बंधे थे, अब मेरा मेरा करके वो खाली होता है। इसीलिए क्या कहा, जब कर्म बनता है तब मैं गलत जगह पर इस्तेमाल हुआ था। वो तभी जो भी सुमति नाम था ना, वो सुमति जी ने अपनी अच्छी मति में ऐसा समझने के लिए जो कर्म बांधे, उसका परिणाम ये सुनीता जी है। समझ में आया? वो हमारे कर्म नहीं है, लेकिन हम इस शरीर से, नामधारी से मुक्त हो गए, अलग हो गए, कि मैं मन वचन काया से बिल्कुल अलग ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और शरीर के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है। हकीकत में वो समझाने के लिए क्या कहते हैं, समझो आप सो गए हैं और नींद में सपना आया, बहुत कुछ अच्छा हुआ कि बहुत कुछ बुरा भी हुआ। जब तक आप सपने में हो
तब उसकी अच्छे बुरे की असर होती है। और जैसे जाग गए और पता चला कि अरे हम तो हमारे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वो तो कुछ नहीं, वो सपना था। सपने में से जागने के बाद क्या होता है, वो बहुत अच्छा सपना था या वो बहुत बुरा सपना था, उसकी असर कितनी रहती है? कुछ नहीं रहती। ऐसा ज्ञानियों ने, तीर्थंकर परमात्मा ने, ये मनुष्य जीवन खुली आँख का सपना है, और खुली आँख के सपने में से आपने आपकी पहचान कर ली कि मैं शुद्धात्मा हूँ, यानी वो खुली आँख के सपने में से आप जाग गए। खुली आँख के सपने में से आप जाग गए, इसीलिए शुद्धात्मा में आपको बिठा दिया। अभी ये सुनिता के जीवन में कुछ भी होता है, बिंदी के जीवन में कुछ भी होता है ना, वो पूर्व कर्म का परिणाम है, जो आपने नहीं बांधा था। वो किसी ने बांधा, लेकिन आपके सर पर आ गया, क्योंकि आपने माना, आपको जो नाम दिया गया, आपने माना मैं सुनीता हूँ, मैं बिंदी। लेकिन यहाँ पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूँ। समझ में आया? तो जैसे बच्चों का ख्याल करते हैं ना, ऐसा ये सुनीता का ख्याल करना है, आपको बिंदी का ख्याल करना है, और संबंध के अनुसार जहाँ जहाँ जो भी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना है। और इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया, व्यवहार दृष्टि से मैं सुनीता हूँ, व्यवहार दृष्टि से बिंदी हूँ, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा। और ये नामधारी के जीवन में जो जो कुछ होता है वो पूर्व कर्म के अनुसार व्यवस्थित शक्ति करती है। व्यवस्थित शक्ति यानी कोई भगवान नहीं करते, या कोई व्यक्ति भी नहीं करता, ना वो हम करते हैं, लेकिन जो कर्म बांधा गया था बीज स्वरूप, आज उसका परिणाम आता रहता है। वो सब बीज इकट्ठे होकर अंदर है, सूक्ष्म तरह से, सूक्ष्मता से। और जब जब उसका संयोग आते हैं ना, जैसे वो बीज को पानी मिलता है, खुराक मिलता है, तो उगता है, ऐसा ये संयोग आता है, वो सुख आता है। पुण्य का परिणाम है तो सुख आएगा, वहाँ के चले जाएगा। पाप का परिणाम है तो दुख आएगा, वहाँ के चले जाएगा। सुख भी टिकता नहीं है और दुख भी टिकता नहीं है, लेकिन हम कायमी, मैं शुद्धात्मा परमानेंट, और परमानेंट यानी वो मेरी सही पहचान है। तो शुद्धात्मा में आप रहेंगे और रहकर ये नामधारी के कर्म का संभव से निपटारा करना है, क्योंकि ये जो कर्म बने थे ना, वो राग द्वेष के कारण बने थे, अज्ञानता के कारण राग द्वेष हुए थे, और वो राग द्वेष का परिणाम ये शरीर है। और ये शरीर के संयोग में राग द्वेष का परिणाम आता है, यानी राग का परिणाम है वो पुण्य का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है वो पाप का परिणाम है। राग का परिणाम सुख देता है, द्वेष का परिणाम दुख देता है। वो सुख भी आता है, बढ़ता है, कम होता है, चली जाता है। दुख भी आता है, बढ़ता है, कम होता है, चली जाता है। समझ में आया? लेकिन हम कायमी है। तो ये कर्म के परिणामों को हमें अच्छे से शुद्धात्मा दृष्टि से देखते रहना है। उस समय जब भुगतान होता है ना, यानी उसकी असर होती है, तब हमें जागृति ना भी रहे। जैसे कि सपना आ रहा है, लेकिन आप जागे हैं, लेकिन पूरी जागृत अवस्था में नहीं है वो, तो एक असर आती है, एक असर आती है। और जैसे आप बिल्कुल जाग जाते हो तो पता चलता है कि अरे ये तो सपना है, सपने में कुछ बना, वो उसका क्या वो करने का, या कुछ टूट गया या चले गया तो उसका क्या दुख करने का। समझ में आया? उसी तरह से ये खुली आँख का सपना है हमारा, और खुली आँख के सपने में हम जागृत रहकर ये सारा नाटक देखने का है, जीवन नाटक, लाइव नाटक, बड़ा मज़ा आएगा। वो बेटा आके बोलेगा मम्मा ये लगा मुझे, तो आपको लगा हो गया तो क्या ये कर्म का परिणाम है, इसे नहीं बोलने का।
फिर कहाँ लगा, कैसे लगा, चलो मैं ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, बस। उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन का नाटक है और नाटक को अदा करते रहना है और बिल्कुल कोई टेंशन लेने का नहीं। टेंशन कब आता है? जब हमें वो समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। महावीर भगवान को जिसे वो कान में कांटा चुभाया, उनको तुरंत दिखाई दिया कि ये कारण है और इसके कारण ये हुआ। अभी वो बोले, हाँ उनको दिखाई देता है कि पूरा जगत में ये हुआ है, उसको जब कुछ होता है तो हमको तो किसी वो दिखाई देगा। अभी सब आवरण है ना, वो तलकी भाई हम दिखाई नहीं देते। आप बोलते मैं हूं ना, लेकिन हम दिखाई नहीं देते। आप बोलते नहीं मैं हूं ना। समझ में आया? ऐसे मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसे हम है, लेकिन अभी दिखाई नहीं देता क्योंकि अभी सब आवरण है, कर्म के आवरण, जिसका हमने प्रतिक्रमण नहीं किया है। समझ में आया? और जैसे जैसे ये प्रतिक्रमण होता जाएगा वो बादल हटते जाएंगे और बादल हटेगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे महावीर भगवान को दिखाई दिया ऐसे हमको भी दिखाई देगा। ध्यान में है? अभी दिखाई नहीं देता ना, इसीलिए हम कई बार हम शिकायत भी कर लेते हैं, देखो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया। वो भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए फिर ये शिकायत भी बंद हो जाएगी। अब बिल्कुल दिखाई देगा और मज़ा आएगी। फिर ये जीवन, जैसे आप देखो 12.5 साल महावीर भगवान घर से निकलने के बाद, उनको केवल ज्ञान 12.5 साल के बाद हुआ। वो 12.5 साल तक परेशान हुए थे? नहीं, उनको एक से और दूसरी चुनौती आती रही। ऐसा कहने के लिए संकट आते रहे, लेकिन वो सब संकटों का, सब कर्म का संभव से निपटारा करते गए। तो आखिर में सब बादल हट गए, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान का मतलब क्या है? कि पूर्ण समझ कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है ना, वो हमें आर पार दिखाई देता है, अभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं हूँ। ऐसे बोलते ना, मैंने एग्जाम्पल दिया, तलक जी भाई बोलते कि मैं हूँ, मैं बोलता लेकिन दिखाई नहीं देते। तो ये निकलना चाहिए, निकलेगा तो आप बोलेंगे और मैं देख भी लूँगा, बस इतना। और ये रास्ता बहुत छोटा है, लंबा नहीं है, हमारी यात्रा भी लंबी नहीं है। इसीलिए बिल्कुल मजा करो, टेंशन कुछ नहीं करने का। व्यवहार दृष्टि से मैं सुनीता हूँ, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूँ। बोलिए। इसमें कई भव लगेंगे। अभी कई भव नहीं है, 2-3 भव के मेहमान हो। वो 2-3 का क्या हिसाब? अनंत भव का हिसाब, अनंत भव का हिसाब था वो 3। बढ़ता ही जाएगा ना। हाँ, खाली वो ज्ञान बढ़ता जाएगा, आवरण टूटते जाएंगे, क्योंकि नया आवरण नहीं बन सकता। नया आवरण बनने के लिए आपका शुभ नाम? हाँ, विजय सिंह। मैं विजय सिंह हूँ, वो तो नहीं रहा, इसीलिए नया कर्म बनता नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूँ, इसीलिए पुराने कर्म खाली होते जाते हैं, नए बनते नहीं हैं। और आपका भाव है मुझे संभव से निपटारा करना है, लेकिन संभव से निपटारा होता नहीं है, इसीलिए 1-2 भव लग जाते हैं। लेकिन नया बनने के लिए मैं विजय सिंह ही हूँ, वो तो अब रहा नहीं। वो ऐसा बोलते हैं, बंदूक तान कर बोलते हैं, बोलो मैं विजय सिंह हूँ। हाँ बोलेंगे, गोली मारना तो मार दो, लेकिन मैं विजय सिंह नहीं हूँ। वो मरेगा तो मैं नहीं मरने वाला, वो विजय सिंह मरेगा। वो तो ज्ञान मिला तब से मरा ही है। समझ आया? ऐसे हम निश्चिंत हो गए हैं, डरने का कोई सवाल उठता नहीं है। लेकिन इतना पक्का हमें मिला है कि जिसके कारण विजय सिंह के कर्म के परिणाम हमें स्पर्श नहीं कर सकते। वो कुछ भी हो, ऐसा है। तो अभी बोलो इस तरह से रहने में हमें क्या दिक्कत है? लेकिन शुद्धात्मा होने का
हमें क्या करना है वही समझ लेना है। ये सारे दिन ये सुनीता जी सुबह से उठने से रात को सोने वक्त जो जो संजोग में से गुजरते उसको आपको देखते रहना है। अब वो समझो मम्मी का रोल अदा करते हैं, तो ये मम्मी का रोल अदा करते करते वो आदर्श मम्मी का रोल अदा करते हैं। यानी अगर कोई सुनीता जी को मम्मी का रोल अदा करते हुए देखते हैं वो खुश हो जाते हैं, अरे वाह बहुत अच्छी मम्मी है। फिर पति का रोल अदा करते हैं, अरे सॉरी पत्नी का रोल अदा करते हैं, तो जो कोई देखेगा वो बोलेगा इतनी आदर्श पत्नी तो आप पास। फिर बहू है, आदर्श बहू, यानी कोई देखेंगे तो बोले और सासू माँ भी बहुत खुश। तो ये सब बात है अभी, लेकिन कर्म का आगे का धक्का है ना, वो अज्ञानता का परिणाम है। इसीलिए ये सब रोल अदा करते हैं ना, मम्मी का, बहन का, पत्नी का, बहू का, उसमें आदर्शता आएगी नहीं एकदम। अगर आपके लक्ष्य में भी है, ध्यान में भी है, निश्चय में भी है कि मुझे आदर्शता से रहना है, लेकिन वो आगे का धक्का है ना आपको गलत करवाता है, तो हमें तुरंत समझ लेना है कि ये अतिक्रमण हो गया, आगे के कर्म के परिणाम से ये अतिक्रमण हुआ, आज उसको सुधार लो। तो आज आपने सुधार लिया, पहले वो गलती से बीज बोया गया था इसीलिए आज उसका परिणाम आया, लेकिन आज आपने प्रतिक्रमण कर लिया तो किसी को बताना नहीं है। और ऐसा बैठेंगे प्रतिक्रमण करके तो अच्छा है, लेकिन जब जब ऐसी कुछ गलतियां होती है और आपको समझ में आती है शुद्धात्मा दृष्टि से, तो तुरंत अंदर से प्रतिक्रमण करना है। और उसके लिए कोई लंबी विधि नहीं बोलनी है, ये गलत हुआ इसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ, चाहता हूँ, कुछ भी बोलो। शुद्धात्मा स्त्री नहीं है, शुद्धात्मा मूल पुरुष है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, दादा आप मुझे शक्ति दो। ये हमारी अंदर की बात है। और इतना हो गया, स्वीकार किया, माफ़ी मांगा, दोबारा नहीं करूँगा, काम खत्म। और कुछ नहीं करने का है, बैठे बैठे यही करने का है। इच्छा होती है, आप मंदिर मार्गी है, हाँ निर्मल जी मंदिर मार्गी है आप? क्यों? तेरा पद्धि वो महाराज साहब आते हैं और अगर दर्शन करने का मन करता है, वो शुद्धात्मा को मन करता है कि सुनीता को मन करता है? हाँ सुनीता को मन करता है, सुनीता को मन है, शुद्धात्मा को मन नहीं है। शुद्धात्मा को कहीं आना जाना नहीं होता है, तो वो जाके दर्शन करके आएगी। लेकिन वो दर्शन करेंगे तो व्यवहार दृष्टि से महाराज साहब है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है, वहाँ भी ये दृष्टि से देख लेंगे। ऐसा है, वे बाहर से साधु है, आप अंदर से साधु है। समझ में आया? वो हमको बताना नहीं है किसी को, और उनके साधुता को, त्याग को नमन है। समझ में आया? तो इस तरह से जब आप जिएंगे बड़े मज़े से जियोगे, कोई परिस्थिति का बोझा रहेगा नहीं, कोई काम का बोझा रहेगा नहीं। और आपको पता चलेगा कि अगर कुछ काम है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि कैसे होगा करके, लेकिन आपको पता चलेगा कि उसके समय पर सब संजोग जो जो चाहिए ना वो आ जाता है। और अगर वो नहीं होता है तो समझना है कि आज उसका वो संजोग नहीं है। अभी आप सोचो कि ये सब हमने तय किया कि चलो जाएंगे, अभी टाइम है तो जाएंगे, तो टिकट के लिए पूछा तो बोला ऐसी ये टिकट, ऐसा ही टिकट, ऐसा टिकट, सब आयोजन होता गया, बिल्कुल 25 दिन का टाइम बिल्कुल सेटअप हो गया। वो किसने किया? व्यवस्थित ने किया। समझ में आया? वो ऐसे ही आपको प्रेरणा मिलती रहेगी आगे आगे की कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, और वो संजोग भी मिलते जाएंगे, वो व्यवस्थित इकट्ठा करेगी। हमें अभी कोई टेंशन नहीं करना है, और वो संजोग ही आपको प्रेरणा देगी कि अभी मुझे ये करना है। समझ में आया? ऐसा
तो शुद्धात्मा दृष्टि से इस तरह से आप रहेंगे और जो जो संयोग आएंगे वो व्यवस्थित शक्ति इकट्ठा करती है। हमें क्या करना है? शुद्धात्मा दृष्टि से संभाव से निपटारा करना है। वहाँ यानी जो साधु होते हैं उनको समता रखनी पड़ती है और हम संभाव से निपटारा करने का निश्चय करते हैं और हमें दादा की कृपा से संभाव बनता जाता है। उसका बोझा नहीं है, हमारा काम निश्चय करने का है। निश्चय के परिणाम से वो व्यवहार अपने आप संभाव से निपटारा होगा। और अगर नहीं होता है तो आपको पता चलता है कि अरे ये नहीं हुआ, तो आप प्रतिक्रमण करोगे कि मुझे तो संभाव से निपटारा करना था, लेकिन संभाव से यानी समाधान पूर्ण व्यवहार नहीं हुआ और थोड़ा खींचातानी हो गई, तो हम माफ़ी मांग लेंगे। वो खींचातानी आपने नहीं की, वो सुनीता ने की, लेकिन सुनीता ने ऐसा क्यों की? वो आगे के कर्म का धक्का खा। समझ में आया? लेकिन आपने तो तय किया था मुझे संभाव से निपटारा करना है, लेकिन आगे का धक्के ने आपको गिरा दिया, तो आप उसको सुधार लेंगे। यानी जो गलती पहले अज्ञानता में हुई थी, आज उसको आप सुधार लेते हैं। और सुधारते सुधारते जो महावीर भगवान को 12.5 साल लगा, हमको 2-3 भव लगेंगे, क्योंकि वो तो द्वापर का समय था। अब ये कलयुग का समय है, यानी 1-2 और उत्कृष्ट एक ही जन्म में ये काम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आज नहीं हुआ एक जन्म में, तो 1-2-3 जन्म में तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है कि आपको जागृत रखेगा। नींद आएगी, वो कर्म के धक्के जितनी ही नींद आएगी, फिर आप भूत जैसे जाग जाओगे। अभी जाग के क्या करना है? तो बोले चलो कौन कौन याद आते हैं देखते हैं। आप ऐसे ही बैठेंगे और कुछ करना नहीं है, चलो देखते हैं कौन कौन याद आते हैं करके। तो कोई पुराने छोटे थे तब का कुछ कोई याद आ जाता है। याद कब आएंगे? जिनके साथ पहले राग द्वेष हुआ है ना, वो लोग आके आपका दरवाज़ा खड़खड़ाएंगे और जब आएंगे तो आप समझ लेंगे ओहो आपका हिसाब बाकी है। 2 दृष्टि से देख लो। चलो कोई सहेली याद आ गई स्कूल के टाइम की, तो अभी ऐसे ही याद आएंगे नहीं, कहीं राग द्वेष है तो ही याद आएंगे। तो उनको आज आप 2 दृष्टि से देख लो। व्यवहार दृष्टि से चलो सलोनी है, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है, हो गया। और फिर उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ था तो वो आपको याद आएगा कि इनके साथ ऐसा, उनको ऐसा किया था, ऐसा किया, तो सबका प्रतिक्रमण कर लो। समझ में आया? बस और कुछ करना नहीं है। और जो जो आते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे फ्री टाइम है ना, तो ऐसे ही बैठना है, कौन कौन याद आते देखो। नहीं तो खुद को सुबह से उठने के बाद क्या क्या किया उसको देख लेना। समझ में आया? तो देखने में आपको पता चलेगा कि कुछ जो गलती हो गई है, जो आपने तभी ध्यान में नहीं आई, वो भी देखकर उसको सुधार लो। यही काम है। गलतियाँ सुनीता जी से होती है, वो करते नहीं है, कर्म का परिणाम है। लेकिन आज आप जागृत रहकर उसको सुधारते रहते हैं। और सुधारते सुधारते महावीर भगवान को 12.5 साल लगे थे, हमें 1-2-3 भव लगेगा, लेकिन वो बोझा नहीं है। बोलो ऐसा है। हाँ, अंबालाला भीतर दादाजी विराजे। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है, हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। हम सब एक ही का मतलब क्या है कि पूर्व कर्म में जो गलती हुई थी, यानी राग द्वेष से किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, यानी यहाँ से
सुख गया, यहाँ से दुख गया। अगर कुछ यहाँ से जाता है तो ये माल यहीं का है ना, समझ में आया। लेकिन जब दिया था उसका परिणाम आने के लिए कम से कम 1 जन्म लगता है। क्रिया से जो दिया जाता है, वाणी से जो दिया जाता है, उसका यही जन्म में आ जाता है। लेकिन जो भाव से दिया जाता है उसको आने के लिए कम से कम 1 जन्म लगता है। तो महावीर भगवान त्रिपुरुष नारायण यानी पहले वासुदेव नारायण कब थे? ये समय की शुरुआत में, और ये आखिर के तीर्थंकर हुए। और वो परिणाम यानी कारण जब कर्म बनना था, वो परिणाम जब महावीर भगवान हुए तब आया। लेकिन तब तक वो बीज स्वरूप बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। तो इस तरह से वो होगा, लेकिन उसे हमें अच्छी तरह से देख लेना है। यानी यहीं से गया हुआ वही वापस आता है। इसीलिए जो लोग आपको मिलते हैं ना, उनको आप अंदर से समझ ये सुनीता ही है करके समझ लेना है। अब उनके तरफ से सुख आए वो पुण्य कर्म का परिणाम है, उनके तरफ से दुख आए वो पाप कर्म का परिणाम है। लेकिन जो यहाँ से गया था, यानी ये व्यवहार से गया था, वो व्यवहार को वापस लौटा रहा है। बस हमें कोई टेंशन नहीं। और ये पक्की समझ से रहोगे ना, देखो क्या बताया, व्यवस्थित का काम, जब तक आपका मोक्ष नहीं होता है ना, वो सारे व्यवहार को संभालना है। समझ में आया? तो जैसे हम पैसा हमारा बैंक में होता है, तो अभी तो ये सिस्टम अलग हो गई, तो हमारा ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले बैंक में जाके पैसा निकालना पड़ता था, अभी मेहनत क्या पड़ती है, फ़ोन को देखो, ये करो और आपका काम हो जाता है। समझ में आया? ऐसा है, उसको क्या मेहनत बोलना है, ये हमारा ही पैसा हम उपयोग करते हैं, यानी हमारा ही कमाया हुआ कर्म यानी व्यवहार से, और वो उसका हिसाब निकालना है। ऐसा है, तो हम सभी एक है, तो यही देखेंगे तो फिर हमारा भाव कभी बिगड़ेगा नहीं। तो बाबू अच्छा पढ़ना, हाँ, पापा मम्मी को टेंशन मत देना। ऐसा है, इसीलिए क्या कहा, ये जगत हमारा आईना है, हमारा रिफ्लेक्शन, हमारा प्रतिबिंब है। तो फिर वो लगता है, वो बच्चे का नाम क्या है, शुभ, वो मानता है मैं शुभ, लेकिन आप समझते कि वो सुनीता ही है। क्योंकि अगर वो सुनीता नहीं होता तो आपके संबंध में आता नहीं। समझ में आया? तो इस तरह से फिर वो कुछ करेगा तो अंदर से थोड़ा मन बिगड़ता है, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता है, फ़ोन मांगता है, फ़ोन पर टाइम बिगाड़ता है, ऐसा करके। लेकिन अभी आप समझ गए कि नहीं ये सुनीता ही है, तो आप बड़े अच्छे से प्यार से उसको समझाएंगे। पहले दिमाग ख़राब हो जाता था, अब समझ गए दिमाग ख़राब होने से तो उनका और भी बिगड़ता है, तो उसको अच्छे से समझाओगे। और हमेशा ऐसा है ना, दिल से की हुई बात हमेशा सामने वाले को पहुंचती है। बाहर से शायद दिखाई दे या ना भी दिखाई दे, लेकिन वो उसको पहुंचेगी। डांटना है ऐसा नहीं कि नहीं डांटना है, ज़रूरत पड़े तो डांटो, लेकिन ये बात है। तो ये सब हम एक ही है, और यही हमारी सबसे सही आज़ादी है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंदम ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है, प्राणों से भी प्यारे हैं, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है, सपनों में हमें आते हैं, सपनों में हमें आते हैं, सपनों में हमें आते हैं,
नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। हमारी गलतियों पर हमें हंसी आएगी। वो कर्म का धक्का है ना, वो हमारी गलती है, हमारी ये नहीं नामदारी की गलती है। लेकिन ज्ञान से हमें समझ में आता है कि ये पहले की गलती का परिणाम है, तो हमको आज दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें गलती समझ में आ गई, अभी गलती को सुधार लेते हैं। वो सुधारते सुधारते सब मूर्ति पत्थर ही होते हैं, लेकिन मूर्ति बनाते 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 ऐसी मूर्ति बन जाती है कि लोग उसको भगवान समझ के पैर पड़ते हैं, वरना है तो पत्थर ही। इसीलिए क्या कहा, एक उदाहरण लेते हैं हम। 6 पत्थर की शिलाएं थी। पहले पत्थर में से कृष्ण भगवान बनाया, मुरली वाले। दूसरे पत्थर से राम भगवान बनाए, तीर वाले। तीसरी मूर्ति से महावीर भगवान बनाए, साधना करते हुए। चौथी मूर्ति से जीसस क्राइस्ट बनाया। 5वीं मूर्ति से मोहम्मद पैगंबर साहब बनाया। तो उनकी मूर्ति नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए हमने बनाया। और 6ठी पत्थर को कुछ किया नहीं, ऐसा ही पत्थर रखा। अभी जो कृष्ण भगवान के भगत आते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? वो 6 सब लाइन में रखा है, लेकिन वो जाएंगे सीधा कृष्ण भगवान के पास। मेरे कृष्ण भगवान प्यार करेंगे। राम भगवान वाले आएंगे हिंदू, वो सीधे जाएंगे कृष्ण राम भगवान के पास। जैनी आएंगे, वो महावीर भगवान के पास जाएंगे। क्रिश्चियन आएंगे, वहाँ जाएंगे क्राइस्ट के पास। पैगंबर साहब के पास वो इस्लाम वाले जाएंगे। 6ठे पत्थर के पास कोई नहीं गया। अभी वही ऐसे ही पत्थर में से वो 5 मूर्तियाँ बनाई थी। समझ में आया? ये सभी मूर्ति एक ही मटेरियल से बनी है, लेकिन कोई 2 व्यक्ति एक शरीर के दिखते नहीं है, क्योंकि कर्म का जो घाट होता है ना, उससे ये शरीर बना है। पत्थर एक ही है और कोई एक शरीर के दिखते नहीं है, लेकिन जिनकी दृष्टि में ये आ गया कि वही मटेरियल है, फिर वो अलग दिखाई देने पर भी वो खुद को ही देखेंगे उसके अंदर, और उनको कभी झगड़ा नहीं होगा। बोलो, बहुत मजे की बात है। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। चरणों में झुकने का मतलब ये है कि जिनके चरणों में हम झुकते हैं, उनके समझ अनुसार हम जिएंगे। पैर पड़ने का मतलब कारण ये है कि हम हमारी मर्जी से चले ना तो खो गए, कभी शांति नहीं हुई। लेकिन ऐसे महापुरुष के चरणों में हम झुकते हैं तो उनके कहे अनुसार हम चलेंगे, तो कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा, कभी दुखी होना नहीं पड़ेगा, हमें प्रसन्नता से जिएंगे। ये है, चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, 2 अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है, दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है,
दुनिया अपना खोटा है, दुनिया अपना खोटा है, जिन्हें मोक्ष चाहिए जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उनके लिए आए हैं, उधारी कलयुग में उधारी कलयुग में बैरर चेकबुक लाए हैं, बैरर चेकबुक लाए हैं, कोट टोपी वाले कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे, दादाजी हमारे। दादाजी हमारे। बोलो, ऐसे कलयुग में हमें ये रास्ता मिला है, घर पर रहो, खाए पिए मज़ा करो और कर्म का निपटारा करो, और इतनी आसानी से, कोई टेंशन नहीं। वो अंदर की जागृति प्रकाश आपको सतर्क करता रहेगा। अरे यहाँ शुद्धात्मा देखना रह गए, अरे यहाँ प्रतिक्रमण करना रह गया, जैसे बोलते हैं ना, वो जो सफाई साफ करने का रह गया, वो उठाना रह गया, वो अंदर से वो जगाएगा हमें। बोलो, ऐसा है। बोलिए आगे। तपस्या करने का मन होता है तो तपस्या करो। वो शुद्धात्मा तपस्या नहीं करता, और नामधारी को भूखा रहना है तो भूखा रहे। वैसे भी जरूरत से ज़्यादा ही खाते रहते हैं, तो कभी ऐसा भूखा रह गए तो अच्छा है, शायद अच्छी रहेगी, ऐसा है। लेकिन उसका टेंशन हम नहीं करते, साधक साधना करते हैं। मैं स्व संयमी शुद्धात्मा मात्र उनको जानता हूँ। समझ में आया? हम संयम में आ गए। मैं शुद्धात्मा हूँ, वो भगवान के संयम में हम आ गए। जो संयम में भगवान रहते थे वो संयम हमारा हो गया। तो अगर ये तपस्या करनी है, साधना करनी है, तो वो साधक साधना करता है, उपवासी उपवास करता है। मैं शुद्धात्मा मात्र उनको जानता। बोले, कोई क्रिया हमारी नहीं, अच्छी क्रिया भी मेरी नहीं, बुरी क्रिया भी मेरी नहीं। मन वचन का है कि क्रिया मात्र उद्गल की, प्रकृति की, मेरी क्रिया नहीं। मेरी तो केवल ज्ञान क्रिया, और वो शास्त्र में बताया ज्ञान क्रिया से मोक्ष, ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्ष, ऐसा बताया, और वही हमारी क्रिया रही। बोलिए, ऐसा है। आगे कुछ हमारा मार्गदर्शन करे तो हम गाड़ी वहाँ ले जाए, ये ज्ञान की गाड़ी को वहाँ ले जाए। और ओ विकास जी, कुछ बोलो ना, कभी कुछ बोलो। देखो, चरण विधि है क्या? पहले तो चरण विधि है क्या? वो पाठ नहीं है। वो पाठ करते हैं ना, स्तवन पढ़ते हैं वगैरह, वो पाठ नहीं है। ये जो भेद विज्ञान के वाक्य आपको ज्ञान विधि में बुलवाए थे, अभी आप तो सत्संग में आ नहीं सकते इतना, तो ये आपका निजी भेद विज्ञान का सत्संग हो जाता है, कि जिससे जो आपको मिला है वो आपकी जागरूकता में रहेगा। क्रिया नहीं है। और वही वो पूरा ऐसा पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ेंगे तो अच्छा है, लेकिन फिर अगर ऐसा ही आप याद करेंगे, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मन वचन का से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, कुछ मैं सुनीता हूँ, मैं सुनीता हूँ, वो अंदर ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसके सामने प्रतिपक्ष हम रखते हैं
ये विधि के द्वारा। तो उससे ये जो असर में नामधारी होने के नाते और कर्म के संयोग के धक्का से जो होता है ना, वो असर नहीं होगी। ऐसा है, वरना कुछ नहीं। जैसे इसीलिए क्या बताया, ये ज्ञान के वाक्य विधि यानी चरण विधि ज्ञान के वाक्य है, वो आपको खुली आंख से सोना सिखाएगा। यानी जैसे कि आप सोचो कि आप सचमुच सोए हुए हैं और किसी ने आपको भला बुरा कहा, आपको क्या असर होती है? कुछ होती है? नहीं होती है। अब जानते ही नहीं है कि मुझे कहा, अब आंखें खुल गई और कुछ कहा, अब तो दिमाग फिरेगा, मुझे कहा, मुझे कहा, ऐसा है। लेकिन अब ज्ञान से जागृत रहोगे, मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी को दिखाई नहीं देता हूँ। मैं किसी को दिखाई दूँ, जिनको जो दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं, तो सुनीताजी को बोलेंगे तो उनके कर्म के हिसाब से ही बोलेंगे। जो कर्म के हिसाब में नहीं है उनको कुछ कर ही नहीं सकते, उनको हक ही नहीं है कुछ भी करने का। वरना वो ग्वाला कहाँ से आ गया, बोले ना, वो कहाँ से टपक पड़ा और आके कुछ लेना नहीं देना नहीं। महावीर भगवान को बोलते हैं ये मेरे बैल को संभालना, तो महावीर भगवान आंखें बंद करके बैठे थे, बोले मैं वहाँ यहाँ आपके बैल को देखने के लिए नहीं बैठा हूँ। एक समझने की बात, आपके बैलों को देखने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, मैं तो ये वर्तमान के अंदर क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। वो आके बोल के गए मेरा बैल संभालना, वो छोड़ के चले गए। भगवान ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था कि मैं आपके बैल संभालूंगा। वो थोड़ी देर के बाद है, वो तो बैल चारा चलते चलते आगे चले गए। अब ये आके बोलते हैं कहाँ है मेरे बैल? भगवान ने अंदर से कहा मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया था, मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन वो तो उनके अंदर की बात थी, लेकिन हिसाब वहाँ का था। तो वो हिसाब का कारण उनको वो गुस्सा आया, कान में कांटे डाल दिए, तो तुरंत उनको समझ में आ गया ओहो वो गलती हुई थी, इसका ये परिणाम हुआ, माफ, जाओ आपको माफ़ कर दिया। इस तरह से हमें भी दिखाई देगा, लेकिन आज हमें दिखाई नहीं देता, फिर भी दादा ने आज्ञा में हमें जवाब दिया है। दिखाई नहीं देता फिर भी जवाब दे कि ये आपका व्यवस्थित है, ये आपका व्यवस्थित है, स्वीकार कर लो और संभव से निपटारा कर दो। समझ में आया? दिखाई नहीं देता है फिर भी दादा ने दिखा दिया। ये कभी दिया नहीं जाता, वो खुद को ढूंढना पड़ता है। और दादा ने देखा कि इन लोगों की शक्ति नहीं है, तो उनको यानी हम लोगों को दादा ने सीधा दे दिया, ज्ञान भी दिया, और ये कौन करता है वो भी हमें बता दिया। कभी कोई झंझट ही नहीं रही, लेकिन व्यवस्थित कह के अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ लेना। जैसे कि मम्मी है आप, वो उसका व्यवस्थित में जो होगा वो करेगा नहीं, आप बोलते रहो, टोकते रहो, डांटते रहो, जो कुछ करना है वो सब करते रहो, और फिर जो व्यवस्थित है वो सही है। जमीन में आया तो बच्चे को टेंथ में है ना, थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा, वो वातावरण अच्छा नहीं है ना, माहौल अच्छा नहीं है, तो बोलेगा इतना मार्क्स लाओगे तो फर्स्ट फोन आपको मिलेगा, बस फिनिश। वो मोटिवेशन चाहिए सबको, इंसेंटिव बोलते हैं। वो कंपनी में इंसेंटिव रखते तो यहाँ भी इंसेंटिव रख देने का, आप लाएंगे तो आपको फोन कंफर्म बोलो। ऐसा है, वो कहते हैं ना लालच देख के उनको ऊपर चढ़ाना है। वो लालच गलत बात नहीं है, लेकिन ये लालच अच्छी है कि ये लालच की प्रेरणा से वो पढ़ाई करेगा, फिर बाद में याद करेगा तो पापा मम्मी दोनों को बोलेगा थैंक यू पापा मम्मी, वरना तो मैं पढ़ता ही नहीं, लेकिन आपकी लालच ने मुझे ये इंजीनियर बना दिया, ये कर बना दिया। ये विधि है, तो वो पढ़ सकते तो बहुत अच्छा, 15 मिनट लगता है, 20 मिनट। और अगर आप नहीं करते हैं तो
सुबह में 6:30 बजे ऑनलाइन आती है, और ऑनलाइन आज तक कितने, जब से वो कोरोना चालू हुआ ना तब से वो ऑनलाइन आ रही है, और कभी भी रिकॉर्डेड नहीं रखी है। किसी ने फिजिकली ऑनलाइन रियल टाइम में किया है, बोलिए। और आज भी चालू 6:30 बजे होता है। अगर उसका आपको लाभ लेना है तो 6:30 बजे आप चालू कर सकते हो, नहीं तो फिर अपने समय में सारे दिन में कर दो, 2-3 बार ब्रेक में कर दो, जैसे करना है। यहाँ पूरा एक टाइम कर रहे हैं, बैठ के करना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे ये क्रिया नहीं है। क्रिया तो उद्गल की है, सुनीता जी की है, नामधारी की है, लेकिन ये हमारी पुरुषार्थ के लिए, पुष्टि के लिए, जागृति के लिए ये करना है, ऐसा है। दिनेश भाई कुछ बोलिए, फरमाइए। हमने पहले दिन आपको याद किया था, पहले दिन मैंने याद किया था, बिल्कुल सही है। आ गया तूफान, तूफान आ गया। विजय सिंह जी बोलिए। एक और ले लेते हैं। स्वामी सिमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उगार, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान, स्वामी सिमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उघार, रिलेटिव में सच मान्यो, कसाय घर में जी माण्यो,
रिलेटिव में सच माण्यो, कसाय घर में जी माण्यो, व्यभिचर धी मन गंठारी, व्यभिचर धी मन गंठारी, बावो जीव ते भटक्यो में, उदगल रस लुब्धक बेभान, उदगल रस लुब्धक बेभान, खाणो पीणो खूंद्य हराम, श्यामी सीमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उगाड़, विषयो भव भवते व्याछे, सद्गुरु नहीं सेव्या में, तुम चो सांध्यो दादाए, कृपा करुण्या अकर में, मेरो मुजरो ल्यो स्वीकार, अब तो समकित कर अवगाढ़, स्वामी सीमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उघाड़, खटपट करके दादा ने, भीतर भावो शुद्ध किया, अद्भुत कारण अज्ञा के, कचरा हमसे नहीं निकला, हम चो मन रो चितना हाथ, हम चो मन रो चितना हाथ, अव्यय ध्रुव कर उत्पादन, स्वामी सीमंदर भगवान, मेरो केवल ज्ञान उघाड़, अंतर शत्रु विजयवते, पद वितरागी सोहायो, मैं तो निर्बल कषायवंत, वैश्वी वन घर भोगायो, खायो चार गति को मार, स्वामी पंचम गत देखाड़, सेवक आयो तेरे दार, भेजो दादा भगवान, अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने, पचियो नहीं वो भारत में, बानी वर्तन विरोधी, वो ही कारण अटक्यो में, कायम सतयुग तेरो धाम, मारे काढ़ी लेवा काम,
स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघार चार गति नो अधिकारी हूँ पद पोताणम विकारी अरिहंताणम अविकारी जीनेश्वर देहाकारी ईश्वर जागृतक भगवान दई दो छेल्ला सुख परिणाम स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उगार अपरगट सत्ता बीज हूँ पूर्णिमा तुम्हारी परगट अज्ञानधा अंधार बुझे सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात भारत ऋण बद्धा संगात छेल्लो दरवाजो खोलिया स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघार दाद श्रुता बोधानुभवे लोगस्य उज्जो अगरे स्वामी स्व आत्मानुभवे अमने निरावरण करे स्वामी अंतिम श्वासो द्वार भेजो ब्रह्मांडो थी पार स्वामी अंतिम श्वासो द्वार भेजो ब्रह्मांडो थी पार स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघार दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो 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 दादा भगवान
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.